Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigere, retired Additional Commissioner, as well as Director of IGNOU School of Law, coming once again with you for Code of Civil Procedure Code 1908. We were discussing Part 1, Suit in General. Now, till last lecture, we have completed this Section 10. In this lecture 5, we are going to do Section 11 and Section 12. I hope so. You have understood till Section 10. Today we start with Section 11. Section 11, res judicata. No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. This is Section 11. I have read the section. Please open your CPC book and read it by yourself. Now I am going to do the explanation part, but let us look at all the explanations which are given under Section 11. The first explanation is the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. ये explanation 1 हो गया. Explanation 2. For the purpose of this section, the competence of the court shall be determined irrespective of any provisions as to right of appeal from the decision of such court. ये explanation 2 हो गया. Explanation 3. The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. ये explanation 3 हो गया. Explanation 4. Any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. Explanation 4. Explanation 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. Explanation 6. Where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under this person so litigating. Explanation 6 हो गया. Explanation 7. The provision of this section shall apply to the proceeding for the execution of a decree and reference in this section to any suit, issue, or former suit shall be constituted as references, respectively, to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding, and former proceeding for the execution of that decree. The explanation 7 हो गया. Explanation 8. An issue heard and finally decided by a court of a limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. ये 8 एक्सप्लेनेशन हो गए सेक्शन 11 के. मैं अभी से ब्रेक डाउन करूंगा डिटेल में ताकि आपको रेस जुडिकाटा समझ में आए. रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी को लेकर. हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो इस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान से सुनना है. ये जो प्रोविजन है सेक्शन 11 में, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है और उसका मैं डिटेल एनालिसिस अभी कर रहा हूं. तो कोर प्रिंसिपल जो रेस जुडिकाटा है उसका पर्पस हमको याद रखना चाहिए. सेक्शन 11 ये आया क्यों, एक बार सेक्शन 11 क्यों आया सीपीसी में, ये अगर आपको समझ में आया तो आपको सेक्शन 11 ऑटोमेटिकली समझ में आएगा.
जब एक डिस्प्यूट पर डिसीजन हो गया है तो उसी डिस्प्यूट को बाद में आप दूसरे कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते, मतलब रिपीटेड लिटिगेशन अलाउड नहीं होगा। ये इसका पर्पस है सेक्शन 11 का। एक बार मैटर एडजुडिकेटेड हो गया, उस मैटर के ऊपर वापस लिटिगेशन नहीं होगा, या वो सूट नए रीति से रीओपन नहीं होगा। इस बात को हमको याद रखना है। दिस प्रोटेक्ट लिटिगेंट फ्रॉम वेक्सिशियस लिटिगेशंस एंड मेंटेन जुडिशियल फाइनलिटी। मुझे लगता है आपको सबको समझ में आया। स्कोप देखते हैं इसका। इट अप्लाइज टू एंटायर सूट। ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिक सूट के कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए अप्लाई होगा, नहीं। स्पेसिफिक इश्यूज विद इन द सूट, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, सर्टेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। अभी लीगल मैगजीन देखिए, इसका क्या है। द प्रिंसिपल इज रूटेड इन द इंटरेस्ट री पब्लिके वुड सिट फाइनेंस लिटिम। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर बी एन एंड टू लिटिगेशन। नहीं तो क्या होगा, एक बार आप हार गए, उसी डिस्प्यूट को आप नए रूप में डालकर ओके वापिस नया सूट दाखिल करोगे तो क्या होगा, जुडिशरी उसी में अपना टाइम निकालते रहेगी। कंडीशन फॉर अप्लाइंग सेक्शन 11। सेक्शन 11 अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कंडीशन है? For res judicata to apply, the following conditions must be met. इंपॉर्टेंट केस लॉ सेक्शन 11 के बाजू में लिख दीजिए। सत्याधन घोषाल वर्सेस डेरोजिन देवी, सुप्रीम कोर्ट का है 1960 का। यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की है सेक्शन 11 को इंटरप्रेट करने के वक्त। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन द इशू। एक बार मैटर जो डिसाइड हो गया उसी मैटर के ऊपर ओके हम वापिस सूट दाखिल नहीं कर सकते। द इश्यू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी सेम एज इन द फॉर्मर सूट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और जब दोनों सूट के इश्यू जब हम कंपेयर करते हैं ओके, it should be directly and substantially, means the core issue determines the case outcome, not incidental or collateral matters. Example, dispute over property title in both the suit. जब कोई टाइटल है प्रॉपर्टी का सूट में डिस्प्यूटेड और दोनों में वही है तो सेक्शन 11 अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों के पार्टी डिफरेंट है तो सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा। द पार्टीज इन बोथ सूट मस्ट बी आइडेंटिकल or their primaries. Example, heirs, assignees, or successor in interest. Litigating under the same title means claiming the same legal right or interest as the owner, tenant or trustees. ये एक्सप्लेनेशन 4 के साथ रिलेट करता है और रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। थर्ड कंडीशन, फॉर्मर सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। मतलब इसके पहले वाला जो सूट है उसकी पूरी सुनावनी हो गई है और उसके ऊपर डिसीजन हो गया है। इस बात को हमको याद रखना है।
और ये रिलेट करता है एक्सप्लेनेशन 1 से। तो पहले का सूट डिसाइड हो गया और वापिस एक सूट आ गया। ठीक है, ट्रायल पूरा 3 कंडीशन हमने देखे। पहला क्या देखा, सब्जेक्ट मैटर दोनों में सेम होना चाहिए। दूसरा क्या देखा, दोनों के पार्टी सेम होने चाहिए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेम होने चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा कि पहले वाला सूट पूरा ट्रायल उसका पूरा होकर उसको फाइनली हियर करके फाइनल ऑर्डर पास होनी चाहिए। शिदोन सिंह वर्सेस दयाराव कुनार, फिर competent court होना चाहिए। The court that decided the former suit must have been competent to try the subsequent suit or the issue raised therein। तो मतलब जिस कोर्ट ने पहला सूट हियर किया है, अगर वो कॉम्पिटेंट है दूसरा सूट सुनने के लिए भी, तो सेक्शन 11 अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 8। Explanation 2 clarifies that competence is assessed without considering appealability. Explanation 8 क्या कहता है, ensure that even court of limited jurisdiction, example small causes court, can create res judicata for issues they are competent to decide, even if they couldn't try the entire subsequent suit। मतलब स्मॉल कॉजेस कोर्ट में अगर रेंट के बारे में डिसीजन हो रहा है और उसके साथ उन्होंने और कुछ मैटर डाला जो उनके पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, तो अगर रेंट का मैटर उन्होंने डिसाइड किया है तो रेंट के मैटर पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा अगर वो वापिस स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन 4, एनी मैटर दैट माइट एंड ought to have been raised in the former suit is deemed decided। मतलब उसके ऊपर डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिखा होगा, फिर भी वो डीम डिसाइडेड होगा, क्योंकि एक मैटर डिसाइड हो गया उसके वजह से दूसरा मैटर भी ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। दिस प्रिवेंट्स पार्टी फ्रॉम स्प्लिटिंग द क्लेम्स और डिफेंसेस टू फाइल न्यू सूट्स। एग्जाम्पल, if a plaintiff sues for possession but omits a claim for mense profit, they cannot later sue for profit। गुरबख्श सिंह वर्सेस बुरलाल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1964। डीम्ड रिफ्यूजल, एक्सप्लेनेशन 5, जब डायरेक्ट रिफ्यूजल नहीं है ऑर्डर में, ओके, लेकिन दूसरा मैटर डिसाइड करने के टाइम ये मैटर ऑटोमेटिकली रिफ्यूज हुआ है, उसको बोलते हैं डीम्ड रिफ्यूजल। तो उसके बारे में हम फ्लैश क्लेम नहीं डाल सकते, एक्सप्लेनेशन 5 कहता है। हम स्कोप और एप्लीकेशन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस जुडिकाटा, जनरल रेस जुडिकाटा बार्स अ न्यू सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ये जनरल हो गया। अभी एस्टॉपल रेस जुडिकाटा, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे उस टाइम हम एस्टॉपल को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से याद रखना। बार्स relitigation of specific issues decided in prior suit even if the cause of action differs। तीसरा रेस जुडिकाटा है कंस्ट्रक्टिव, covers issue that should have been raised, एक्सप्लेनेशन 4। मतलब जो पहला इश्यू रेस करना चाहिए था आपने रेस नहीं किया, अब नया सूट डालकर उस क्वेश्चन को रेस कर रहे हैं, नहीं चलेगा, सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा। Execution proceeding, explanation 7, res judicata applies to execution proceedings। For example, if an objection to execution is decided, it cannot be relitigated in a new execution proceeding। अब पब्लिक इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट, एक्सप्लेनेशन 6 को हम देखते हैं। डिसीजन इन सूट involving public rights, example right of public road or common private properties, private rights,
Example, community property. Bind all the affected person. मतलब एक बार किसी के खिलाफ पब्लिक रोड के बारे में मैटर डिसाइड हो गया तो दूसरा आदमी उधर जाकर लिटिगेशन नहीं डाल सकता, वो हर पब्लिक के ऊपर लागू हो गया डिसीजन। ये एक्सप्लेनेशन 6 है। एक्सप्लेनेशन 8 को हम देखते हैं। कोर्ट्स ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, इवन डिसीजन बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट with restricted jurisdiction like rent control courts can create res judicata for specific issues. अभी हम एक्सेप्शन को देखते हैं। रेस जुडिकाटा का एक्सेप्शन, वेयर रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इफ द प्रायर डिसीजन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन। ये बेली राम एंड ब्रदर्स वर्सेस मोहम्मद अफजल, EIR 1948, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। प्रायर कोर्ट लैक ज्यूरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। Issue wasn't decided on merit, dismissed for default, res judicata will not apply. Subsequent suit involves a different cause of action or title, res judicata will not apply. There is a change in law affecting the prior decision. अब लॉ चेंज हो गया है, प्रायर डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। मथुरा प्रसाद वर्सेस डोसीबाई 1971, res judicata will not apply. The matter falls under special statute excluding res judicata like labor laws. मतलब सिविल मैटर डिसाइड हो गया लेकिन मैटर लेबर लॉ का है, res judicata will not apply. Procedure to invoke, pleading res judicata. The defendant typically raises it in the written statement supported by the prior suit's pleading, judgment and decree. मतलब क्या है कि भाई जब किसी ने प्लेन डाल दिया तो डिफेंडेंट का काम है जब रिटर्न स्टेटमेंट वो देगा तो प्रायर सूट और प्लीडिंग और जजमेंट और डिक्री वो रिटर्न स्टेटमेंट में वो सपोर्टेड होना चाहिए। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है रेस जुडिकाटा इन्वोक करने का। कोर्ट्स रोल, द कोर्ट एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाइज द कंडीशन। If res judicata applies, the suit or issue is dismissed under Order 7, Rule 11. Suit barred by law. तीसरा point, burden of proof lies on the party who is invoking res judicata. मतलब जो पार्टी बोल रही है कि हम रेस जुडिकाटा को अप्लाई करना चाहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा कि उसको यह बताना पड़ेगा ये सब्जेक्ट मैटर यही पार्टियों का पहले ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अपील एंड रिवीजन, ऑर्डर्स ऑन रेस जुडिकाटा आर अपीलेबल अंडर सेक्शन 96 और रिवर्सेबल अंडर सेक्शन 115 इफ देयर इज ज्यूरिडिक्शनल एरर। आइए हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सत्याधन घोषाल वर्सेस देवरानी देवी, मैंने पहले ही कहा इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू इश्यूज डिसाइडेड ऑन मेरिट इवन ऑन इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1994 का, एक्सटेंडेड रेस जुडिकाटा टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। YB पाटिल वर्सेस YL पाटिल 1976, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, clarified that constructive res judicata prevents splitting of claims. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नानक सिंह 1968 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, held that res judicata doesn't apply if the prior suit was dismissed for non-joinder without adjudicating the merits. Ishar Singh versus Sarwan Singh emphasized that fraud or collision nullifies res judicata. Recent trend में कैनरा बैंक वर्सेस NG शेट्टी
2018 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट reiterated that res judicata applies to arbitration awards if they involve the same parties and issues. Post 2020, with commercial courts under Commercial Court Act 2015, courts have applied res judicata strictly to expedite commercial dispute. अब सेक्शन 11 कौन कौन से सेक्शन से कोरिलेट करता है? पहला है सेक्शन 10, रेस जुडाइस, स्टे ऑफ द सूट. फिर ऑर्डर टू, रूल 2, बार टू फर्दर सूट. ये सब लिख के रखी है सेक्शन के बाजू में आपके सीपीसी में. सेक्शन 151, इनहेरेंट पावर्स. सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल implication. Judicial efficiency in India with over 4 crore pending cases. Res judicata reduces the court congestion and court burden for repetitive litigations. Litigant gets protection. मतलब एक बार आपने केस जीत लिया, आप लिटिगेंट थे, प्लेंटिफ थे, बार बार अगर डिफेंडेंट ने फिर प्लेन दाखिल किया तो लिटिगेंट को तकलीफ होगी. चैलेंजेस. Misuse occurs when party disguise new suits. Modern context, with virtual hearing and special tribunals, res judicata ensures consistency across forum. Practically, litigants must consolidate all claims in one suit to avoid constructive res judicata. आइए हम सेक्शन 12 की ओर चलते हैं. मुझे लगता है सेक्शन 11 आपको समझ में आया होगा. 10 था स्टे फॉर सूट, 11 था रेस जुडिकाटा. अब सेक्शन 12, बार टू फर्दर सूट. हम दोनों 11 12 को साथ में इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आएगा रेस जुडिकाटा 11 और 12 का डिफरेंस. Where a plaintiff is precluded by rules from instituting or further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. ये बार है सूट दाखिल करने के लिए. हमने तो इस सेक्शन को पढ़ लिया, अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे ताकि आपको सेक्शन 12 समझ में आए. सेक्शन 12 का पर्पस क्या है? सेक्शन 12 सीपीसी में क्यों आया? सेक्शन 12 ensures that once a matter has been adjudicated by a competent court, the same court cannot be raised, the same issue cannot be raised again in a new suit. मतलब अगर कोई इश्यू को डिसाइड हुआ है, भले पूरा मैटर नहीं डिसाइड हो, इश्यू डिसाइड हुआ है, तो उसी इश्यू को आप दूसरे सूट में डालकर उस इश्यू को रेज नहीं कर सकते. ये सेक्शन 12 कहता है. 11 अलग था, 12 अलग है. दिस प्रमोट्स जुडिशियल एफिशिएंसी, प्रिवेंट्स हैरेसमेंट ऑफ द पार्टी थ्रू रिपीटेटिव लिटिगेशन. इट अप्लाइज टू केसेस where specific rules under CPC or other laws bar the filing of fresh suit on the same cause of action. मुझे लगता है आपको पर्पस समझ में आया होगा. अभी हम देखते हैं रेस जुडिकाटा के साथ इसका क्या रिलेशन है. सेक्शन 12 कॉम्प्लीमेंट सेक्शन 11. मतलब 11 और 12 साथ साथ में चलता है सीपीसी का, which explicitly deal with the doctrine of res judicata, while section 11 prevents relitigation of the same matter between the same parties in the subsequent suit. Section 12 acts as a broader bar to instituting suits where plaintiff is precluded by any rule. मतलब कोई भी रूल से अगर वो डिबार हो गया है सेक्शन 12 में, तो सॉरी सेक्शन 11 में, तो वो दूसरा सूट दाखिल करने नहीं देता. सेक्शन 12 ने क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, सेम पार्टी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ a suit is dismissed for certain procedural reason like non-payment of court fees or failure to comply with statutory requirements,
Section 12 may bar a fresh suit on the same cause of action. स्कोप देखते हैं सेक्शन 12 का. स्कोप क्या है? This section applies to situation where plaintiff is restricted by any rule. मतलब कोई भी रूल से अगर प्लेंटिव रिस्ट्रिक्टेड है तो सेक्शन 12 अप्लाई होगा. ये इसका स्कोप है. फ्रॉम फाइलिंग अ न्यू सूट, याद रखना. दिस रूल कुड इंक्लूड प्रोविजन इन द सीपीसी इटसेल्फ, dismissal of suit under Order 7, Rule 11 for lack of cause of action or non-compliance with procedural requirement. देखिए Order 7, Rule 11 पढ़ लेना. कभी सूट डिसमिस होता है, ओके, जब लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो, नॉन कंप्लायंस हो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का. Other laws that impose restriction on filing fresh suits, limitation period, court orders or decrees that explicitly bar further suits. It applies to all courts governed by CPC. Cause of action की ओर हम देखते हैं. Cause of action, इसका मतलब क्या है? इस टर्मिनोलॉजी को हमने हमारे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सीपीसी का, उसको हमने एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं. कॉज ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है. द टर्म कॉज ऑफ एक्शन रिफर्स टू द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस दैट गिव राइज टू लीगल राइट टू सू. मतलब कोई भी चीज, सर्कमस्टेंसेस या कोई भी तथ्य या कोई भी हकीकत जो लीगल राइट को बनाता है, किसी को लीगल राइट देता है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है. मतलब एक्स की प्रॉपर्टी है, वाई को रेंट को दी, वाई को रेंट देना है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है. तो अगर वाई ने एग्रीमेंट के द्वारा एक्स को रेंट नहीं दिया तो कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट उसको लीगल राइट दे रहा है. याद रखना. एक्सेप्शन, सेक्शन 12 डज नॉट अप्लाई if the earlier suit was dismissed without adjudication on merit. मेरिट पर अगर मैटर डिसाइड नहीं हुआ है तो सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगा. ऑर्डर 9, रूल 8, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. याद रखना. प्लीज ये सब रूल्स लिखते रहिए आप, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे सर रूल हमको पता ही नहीं चला. इन सच केसेस द प्लेंटिफ मे बी अलाउड to file a fresh suit subject to other legal provisions like limitation. If the court lacked jurisdiction in the earlier suit or if the dismissal was due to technical reason, a fresh suit may not be bad. Example of application लेते हैं. Dismissal under Order 7, Rule 11. Example ले रहे हैं हम इसका. If a suit is rejected for the reason like non-payment of court fees, lack of jurisdiction, or failure to disclose the cause of action, Section 12 may prevent the plaintiff from filing a fresh suit on the same cause of action. Statutory bar. If the statute requires certain conditions to be met before filing the suit and the plaintiff fails to comply, सेक्शन 12 में बार अ सब्सिक्वेंट सूट. देखिए कब कब सेक्शन 12 का बार आता है. इसलिए सूट दाखिल करने के पहले सारी चीजें पहला पर देख लीजिए, नहीं तो कॉज ऑफ एक्शन ने अगर आप बराबर डाले नहीं तो आप उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट दाखिल नहीं कर सकेंगे, बार हो जाएगा. कोर्ट ऑर्डर्स. इफ कोर्ट डिक्रीज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स फर्दर लिटिगेशन ऑन द सेम मैटर, Section 12 enforces that restriction. Judicial interpretation. Courts have interpreted Section 12 to ensure that it is applied in consonance with principle of natural justice, equity, and good conscience. The bar applies only when the earlier decision was a competent court on the same cause of action. Supreme Court of India has emphasized that
Section 12 is meant to prevent abuse of judicial process and protect parties from vexatious litigation. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं 12 का. Section 12 encourages plaintiff to diligently pursue their claim and comply with procedural requirement to avoid dismissal. मतलब डिसमिसल होने से बचने के लिए हर प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करना है. ये प्लेंटिफ को सेक्शन 12 एनकरेज करता है. नहीं तो क्या होगा, सूट बार हो जाएगा. प्रोटेक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम बीइंग ड्रैग्ड इनटू रिपीटेटिव लिटिगेशन और द सेम डिस्प्यूट. Lawyers and litigants must carefully analyze whether fresh suit is permissible or bad under section 12 before filing. Illustration को देखते हैं, उदाहरण को. A plaintiff files a suit for recovery of money based on contract but fails to pay the required court fees. The suit is dismissed under order 7 rule 11. If the plaintiff attempts to file a fresh suit for the same money based on the same contract, section 12 may bar it unless the dismissal is set aside or the plaintiff is allowed to rectify the defect. Conclusion. Section 12 of CPC is a critical provision that upholds the principle of finality in litigation by preventing plaintiff from filing fresh suits on the same cause of action which barred by rules. 11 ने क्या बोला था रेस जुडिकाटा ने कि भाई वो बैर क्यों हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है. अब ये क्या बोल रहा 12 कि रूल्स के अंडर जो बाहर हो गए उसी को वापिस नहीं दाखिल कर सकते, उसके लिए सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा. मुझे लगता है मैंने आपको सेक्शन 11 सेक्शन 12 क्लियरली एक्सप्लेन किया है. इफ यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन 11 एंड 12, लाइक तो बनता है, एक लाइक डाल दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में अपने जरूर कमेंट कर देना. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. थैंक यू सो मच. लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ CPC where we will go for section 13 and 14. There we will complete jurisdiction and res judicata of part 1 in general suits. Thank you so much.